Our focus, there's a very concerning story that is coming from the national capital, a big breaking news in fact coming in. A threat email has been received to blow up Delhi's Udyog Bhavan with IED. This is a big breaking news that we're getting for you at this point in time. CISF has been directed to take appropriate action is what we are learning, and in fact a letter has also been written to Assistant Commandant of CISF regarding this, seeking necessary action as far as this is concerned. So a threat email has been sent to Delhi's Udyog Bhavan. Remember, this is a place, this is a Bhavan, a government office that is not more than around 1.8 kilometers away from the Parliament of India, a very crucial place. In fact, what we're learning so far is that the senior officials of Ministry of Steel and other ministries have received this email, and Republic TV has accessed a letter. आईडी बम से उड़ा दिया जाएगा और आप देखेंगे कि बाइक से भी अगर कोई अंदर जा रहा है. So Republic TV has in fact accessed this letter that it has. This has been written to the Assistant Commandant of CISF. और तस्वीरें आप देखेंगे कि हालांकि अंदर पूरे उद्योग भवन को खाली करने के बाद सिक्योरिटी को कड़ा किया गया, अंदर पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है और अब आप तस्वीरों में देखेंगे जो भी गाड़ी अंदर जा रही है उसकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की जा रही है. हालांकि दमकल विभाग, बॉम्ब स्क्वाड सब यहाँ पर मौके पर पहुंचे, पूरे उद्योग भवन को सैनिटाइज करके उसकी चेकिंग की गई. हालांकि कुछ भी सस्पिशियस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जिस तरीके से थ्रेट मेल मिला उसके बाद इस पूरे उद्योग भवन की जो सिक्योरिटी है उसको कड़ा कर दिया गया है. तमाम जो गाड़ियां अंदर जा रही है उनसे पूछा जा रहा है, उनके आईडी कार्ड संभवतः चेक यहाँ पर किए जाते हैं. लेकिन अब आप देखेंगे कि उद्योग भवन की सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी पर्सनल तैनात है वो गाड़ी की बारीकी से जांच कर रहे हैं. डिक्की, सीट के नीचे क्या कुछ रखा है वो सभी चीजें चेक कर रहे हैं. जानकारी ये मिल रही है कि सेक्रेटरी को एक मेल पहुंचा था, उस मेल में लिखा हुआ था कि उद्योग भवन को आईडी बम से उड़ा दिया जाएगा और आप देखेंगे कि बाइक से भी अगर कोई अंदर जा रहा है उसके हाथ में थैले तो उसको बाकायदा यहाँ पर चेक किया जा रहा है. तो ये थ्रेट मेल कहां से मिला ये अभी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए, प्रिकॉशंस को देखते हुए पूरे इलाके को चेक किया गया है और आप देखेंगे कि तकरीबन 3 बजे के आसपास उद्योग भवन पूरे तरीके से खाली करा लिया गया. हालांकि पूरे परिसर को चेक किया गया, बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा, कुछ भी सस्पिशियस अभी तक अंदर से नहीं मिला है, लेकिन सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट कर दी गई है. जो गाड़ियां अंदर जा रही हैं, लोग अंदर जा रहे हैं, उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी लूप होल ना रह सके. विजय विकास के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली. Colleague reporting from outside Udyog Bhavan. In fact, what we're learning so far is that the security has been heightened in Udyog Bhavan. As I mentioned before, this is a government office that is less than 2 kilometers away from the Parliament of India. Very crucial place at a very crucial location. Security has been heightened, as you can also see in the visuals. All the cars that are going inside this Bhavan are being checked. But so far, as my colleague Jatin pointed out, nothing suspicious has been found so far. But a threat email has been received by them to blow up this Bhavan by an IED. CISF has been directed to take appropriate steps in this manner. Now, we also have a letter that has been written to the Assistant Commandant of CISF, and it has been written by the Under Secretary to the Government of India, and it mentions, I quote, "I'm directed to refer to an email dated 30th May whereby a threatening message has been delivered to the Secretary of Heavy Industries Ministry about the use of suicide IED, that is improvised explosive device, in the Udyog Bhavan. CISF is therefore requested to take necessary action as deemed fit." So this is in fact a letter that has been written to the Assistant Commandant of CISF. Let me go across to my colleague Jatin, who joins us live in the broadcast with more details. Jatin, आप वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पे सिक्योरिटी जैसे आपने बताया है कि वहां पे इंक्रीज हो गई है, पर कुछ अभी तक क्या कुछ सस्पिशियस वहां पे मिल पाया है? बिल्कुल, देखिए अच्छी बात यह है कि कुछ भी सस्पिशियस अभी तक नहीं मिला है, लेकिन पूरे उद्योग भवन को सैनिटाइज किया गया था, सभी लोगों को बाहर निकाला गया. हालांकि अब सब लोग अंदर चले गए हैं, जितना भी स्टाफ था. जो बॉम्ब स्क्वाड है अभी एक टीम अंदर मौजूद है, फायर डिपार्टमेंट की एक टीम अंदर मौजूद है, क्योंकि प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना जरूरी है. लेकिन सिक्योरिटी आप देखेंगे यहाँ पर ब्रीफ अप कर दी गई है, बढ़ा दी गई है. जो भी गाड़ी अंदर जा रही है उनको बाकायदा चेक किया जा रहा है. ये जानकारी मिली तकरीबन 1:01 पर दोपहर को. दमकल विभाग को भी जानकारी दी गई कि इस तरीके
तरीके से थ्रेट मेल मिला है, जिसके बाद तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पर फॉलो किया गया। और आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि लगातार चाहे वो गाड़ियों की डिक्की हो, कौन गाड़ी चला रहा है, सीट्स के नीचे, गाड़ी के नीचे मिरर से तमाम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो उद्योग भवन का अब यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। हालांकि इतनी सिक्योरिटी पहले भी होती है, लेकिन जिस तरीके से आज थ्रेट में रहा है उसको लेकर तमाम प्रिकॉशंस जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर आपको लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी उनकी पहली प्रेफरेंस ये है कि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज करके इसको बार बार चेक किया जा रहा है कि कुछ कोई लूपहोल तो नहीं है। और यही कारण है कि सिक्योरिटी को बढ़ाना और अंदर तमाम जो ऑफिसेज हैं, जितने डार्क स्पॉट्स हैं, उन सभी को चेक किया जा रहा है। लेकिन अचानक इस तरीके से मेल किसने किया, क्या उसकी मंशा थी, इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन इतना बिल्कुल बताया गया दिल्ली पुलिस के जरिए कि उनको भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया है कि इस तरीके से एक तरीके से जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो ईमेल है, वो यहाँ पर मिला था। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी पूरे इलाके को चेक किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ भी सस्पिशियस अभी तक अंदर नहीं मिला है। तकरीबन 1.5 घंटे तक जो पूरा स्टाफ है वो बाहर यहाँ पर मौजूद था। अब सभी स्टाफ को अंदर जो उनका काम है उसके लिए भेजा गया है। लेकिन क्रॉस चेक यहाँ पर किया जा रहा है, मेल का सोर्स क्या था वो भी वेरीफाई किया जा रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे की जाएगी कि किसने ये मेल किया, क्या उसकी मंशा थी। लेकिन मेल में साफ तौर पर मेंशन है कि उद्योग भवन को आईडी बम से उड़ा दिया जाएगा। आपको याद होगा कि इससे पहले भी दिल्ली के स्कूल, अस्पताल में इस तरीके के थ्रेट मेल आते थे। लेकिन एक सरकारी भवन को इस तरीके से टारगेट करना, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी आगे कार्रवाई लीगल तौर पर करनी है वो कार्रवाई भी संभवतः यहाँ पर की जाएगी। बैक टू स्टूडियो। Absolutely. So, in fact, the security has been heightened here, as my colleague Jatin has been reporting from there. It's a very concerning news that is coming from the national capital, because in the last few months we have seen such hoax calls, bomb threats that have been given to schools as well as to other places as well. Jatin, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी क्या सिचुएशन है वहाँ? अभी कितने वहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग हैं? आप बता रहे हैं फायर डिपार्टमेंट अंदर प्रेजेंट है, क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है? डिपार्टमेंट अंदर प्रेजेंट है, क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए पूरे उद्योग भवन है उसको खाली करवा लिया गया था। हालांकि अब सबको अंदर वापस भेजा गया है, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, क्योंकि ये लोकेशन बहुत क्रिटिकल है। यहाँ से राष्ट्रपति भवन कुछ मिनट की दूरी पर है। ये कह लीजिए कि तकरीबन 1 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति भवन है। गृह मंत्री अमित शाह का घर तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर वो भी है। कर्तव्य पथ बिल्कुल इसके पीछे है। तमाम सरकारी ऑफिसेज यहाँ पर है, तो इसको क्रॉस चेक किया जा रहा है। आप देखेंगे बाहर जितनी सिक्योरिटी है उसी तरीके से अंदर जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं, कॉरिडोर्स, पार्किंग लॉट है, रिसेप्शन है, मंत्रालय के अलग अलग दफ्तर है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। स्टाफ की मदद ली जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जितने भी प्रोटोकॉल है एक सरकारी भवन को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी चेक्स करने के लिए, उन सभी को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, ये अच्छी खबर भी है। लेकिन थ्रेट मेल किसने भेजा ये अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उनकी टीम अंदर मौजूद है। जिन सेक्रेटरी को ये मेल पहुंचा, संभवतः वो अगर रिटर्न कंप्लेंट देते हैं तो इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकारी भवन है, मंत्रालय इसमें काफी सारे हैं और लुटियंस दिल्ली के अंदर ये आता है और बेहद नजदीक एयरफोर्स भवन इसके सामने है। तो सिचुएशन और लोकेलिटी को देखते हुए किसी भी तरीके का पैनिक ना हो और किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, उसको लेकर तमाम जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अंदर अभी भी एक टीम मौजूद है जो वेरीफाई कर रही है, क्रॉस चेक कर रही है, डबल चेक कर रही है कि कोई डार्क स्पॉट अंदर ना रह जाए। लेकिन अब मैं फिर से आपको बता दूं कि कुछ भी सस्पिशियस अभी तक नहीं मिला है। लेकिन मेल में जिस तरीके की आईडी ब्लास्ट को लेकर, धमाके को लेकर, बम से उड़ाने को लेकर जो बातें लिखी गई थी, उसको लेकर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर लीगल एक्शन लिया जाएगा। किस वीपीएन से ये मेल किया गया वो वेरीफाई किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। और लोकेशन, लोकेलिटी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हाई सिक्योर्ड जोन के अंदर ये उद्योग भवन आता है। लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। वेरीफाई और क्रॉस चेक यहाँ पर किया जा रहा है। टीम अंदर अभी भी मौजूद है। फायर की जो काफी गाड़ियां हैं वो भी यहाँ से निकल के जा भी चुकी है। लेकिन लोकेलिटी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिस्ट्रीज यहाँ पर बहुत सारी है, उनकी सिक्योरिटी को लेकर, स्टाफ की सिक्योरिटी को लेकर वेरीफाई चीजें की जा रही है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिसने भी मेल किया है उसकी मंशा और तमाम चीजें आने वाले समय में वेरीफाई और उसको इन्वेस्टिगेट करती हुई पुलिस नजर आएगी। Absolutely. So protocols are being followed there. Nothing suspicious has been found. That is what my colleague Jatin has been reporting. But this is very concerning because this is a very prominent location there in the national capital. We're taking a very short break. Coming up next is a threat email that has been sent to Delhi's Udyog Bhavan. Senior officials of Ministry of Steel and Ministry has received the email threat. We'll get you more on this. Also on the other side, Chandigarh Secretariat has also received a bomb threat, after which the premises have been evacuated.